let's not just waste time and start the reboot session. And let me just quickly present the screen. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes. All right, guys. So just to give you the intro about today's reboot session. So we are going to tell you the media basics की media में होता क्या क्या है. Since everyone is aware that we are from the media department, and media department में क्या क्या हम लोग करते हैं, what are the basics that we should be aware to align each and every one, because we are working together as a team. So everyone should be aligned कि media में what all matrices that we look at, what is the basics that we need to understand in case हम किसी चीज पे लैग तो नहीं कर रहे हैं. तो we have observed many things कि media से related we get queries, and people are not aware कि media में होता क्या क्या है, what matrices that we see, what are the basics that we follow, कौन से platform पे क्या करना है, ये चीजें थोड़ा सा alignment नहीं है. So that's why we set up this reboot session to make you understand that what are the media basics, or what are the effective tools to help us out in terms of utilizing the resources that we have. So let's just quickly start. So just it's a basic introduction about the digital media. Digital media क्या है हमारा? Digital media is the basic where we are active on electronic devices, जिसमें हम we see the ads, and with the help of these electronic devices we utilize the resources in terms of be it downloading a software or a video game, or browsing any website, or most of the time all of us are doing social media browsing, be it Facebook, be it Instagram, right? And this particular digital media is mainly is your online advertising. So whatever ad you are seeing on your devices, it's a part of digital media that we are kind of live in our daily lives. Now coming to the types of media. So if I talk about on a broader level, so majorly हमारे पास क्या है कि हमारे three types of media होते हैं. We have three types of media, जिसमें one is your paid media, and other is your earned media, and third one is your owned media. So when I say paid media, so whatever ads, whatever promotion we are doing for our brand, be it any product, be it any kind of resource. When I say resource, it can be a course. When I say resource, it can be a consulting services, right? And when I say a product, it means that I'm selling any mobile accessories, or maybe any shoe, or maybe any cloth. Let's say like just we are doing Dash Hair. Dash Hair is our brand. So उनका product क्या है? So they are selling hair curler and straightener. So they are giving product as a service. But there are other brands who are not giving the physical product, a tangible product, but they are giving a service. Let's say कोई हम online course के लिए opt करते हैं. So we don't get any solid material in terms of course. एक पूरा हमारे पास course का पूरा notes होते हैं. There are classes that we follow. So these are the services that we are leveraging. When I say services, it can be anything. So let's take an example of NEM. So we are a digital marketing agency, a 360 digital marketing agency, and we give services to our clients. हम कुछ ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं देते हैं कि एनईएम ये देता है, आप ये रखोगे आपका ऑनलाइन मीडियम प्रमोट होगा. नो, वी गिव द सर्विसेज, राइट? So that comes into the paid media, जिसमें हम be it any platform, if we are going on promotion for a brand or services as a paid media, because we are paying for that particular promotion, that comes into the paid media, जिसमें आपका क्लिक्स पे हम पे करते हैं, जिसमें हम डिस्प्ले एड्स भी हम चलाते हैं, जिसमें we do retargeting as well. So that comes into the paid media. Now just to give you an example about the earned media. So on the top right we can see there are some categories that is mentioned. So media से related whatever हम, let's take an example of Instagram. Let's say there are posts, or maybe there is an event going on, like everybody is aware that अभी हमारा MEA का event चल रहा है, and we all are aware. So event is not like कि कोई भी उसको
accept कर लेगा and it will be gone. It is live and it will be live on 21st of October. So mentions, so basically if someone is sharing that event link और maybe उसको share कर रहा है, like कर रहा है या repost कर रहा है अपने page पर, maybe be it on Instagram, be it on Facebook, it is a part of earned media, because we are not paying anything, but it is being promoted through shares, through mentions, through repost, and people are commenting on it. Maybe people are putting any review, right? That comes into the part of earned media. Now coming to the third media, that is your own media. So when I say own media, it itself explain the part of this particular category. When I say owned, it means that we own that particular property. So let's say we have a website, NEM की एक हमारी खुद की website है, right? So we own that website. So no one else is taking care of that website apart from NEM itself, right? So that is our own media. So with the help of that website, we promote our services. We reach out to the users. We bring awareness to the users to help them कि हमारा क्या क्या है, what services we provide, right? So be it your mobile site, or maybe let's say if I have a blog site and I'm posting content related to social media marketing, maybe related to content. So that comes into the blog site, because I'm owning that particular property. Maybe I have some social media channels. Let's say being the media person in the team, and I have created a page for myself जिसमें मैं सिर्फ NEM की टीम को updates देना चाहता हूँ, and I'm sharing regular updates. I'm sharing some articles, sharing some case studies on that particular page. So that is a medium, that is a media which helps me to spread the awareness, to give the education about the particular topics or any related articles. So that comes into the own media. So basically, if I talk about on a broader way, majorly we focus on the paid media, but earned media and owned media is the subset of this paid media. But these are the broader categories that we look at. So everyone should be clear कि paid media अगर जो मैं बोल रहा हूँ, so we are paying for that. Earned media is different. किसी का कोई क्वेश्चन है? Anybody have any question, any query? You can ask. किसी को कोई नहीं है? गुड गुड। मीडिया में बेसिकली मेंशन शेयर्स रीपोस्ट, मतलब जो हम लोग एज अ क्रेडिबिलिटी के लिए या फिर मतलब दूसरों से करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, एंगेजमेंट वगैरह, ये सब चीजें ही आती है अर्न मीडिया। Don't get confused when I say paid media, earned media. So these are the parts of media, but to specify कि अगर जो मैं paid ads चला रहा हूँ, that comes into the paid media वाला part. Since let's say कि अभी हमारा MEA का event चल रहा है, right? And we are promoting these videos, these posts that we are doing, reels हम जो डाल रहे हैं, but we are putting some budget on that, right? तो वो paid media का part है, we are buying that promotion, right? That comes to the paid media. Similarly, earned media में क्या है? The same content that is on your page. What you are doing is you are sharing that particular event link or maybe post link or maybe reel है, आप share कर रहे हो, आप repost कर रहे हो, लोग आपके post से interact होकर उस पे comment कर रहे हैं या फिर कोई response डाल रहे हैं. So that is a part of earned media. वो हमने earn किया है. We're not paying anything, right? बेसिकली जो ऑर्गेनिक जो डाल रहे हैं, ऑर्गेनिकली हम कुछ भी डाल रहे हैं, उससे जो हमारी एंगेजमेंट इंटरेक्शंस हो रही है या फिर हम भी अपना कुछ इनपुट जो है डाल रहे हैं ऑर्गेनिकली, वो सब अर्न मीडिया में आ जाएगा, जो हम अर्न कर रहे हैं विदाउट एनी गिविंग, मतलब विदाउट एनी राइट मनी ना देके जो भी हम अर्न कर रहे हैं, राइट वो अर्न मीडिया। Context is right, but see, it's technical thing. Don't get confused. ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि पेड मीडिया क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि what is earned media, right? So you should be aware, because we are in an environment, we should be aware of these basics कि होता क्या है. If someone is talking about paid media, let's say if a client comes in that we are looking for paid media promotions, right? So you are aware कि client क्या पूछना चाहता है. अरे सर हम पोस्ट डाल देंगे, हम आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे. उसको ये नहीं सुनना है, उसको ये जानना है कि सर हम which particular platform will help us to grow your channel or your product or services. Then you go for the paid media. We buy that media कि मैं उसको क्लिक्स पे उसका कैंपेन चलाने वाला हूँ या उसको मैं रीच उसको देने वाला हूँ. So it totally depends. Every client and every brand has their own objectives. So if I talk about objectives, some of our clients are looking for awareness only.
and some of our clients are looking for sales. Let's just take an example of so I used to work with for a client which is for the brand awareness campaign we used to do. So Air India, if everyone is aware about that airlines. So Air India का we used to do the campaign और उसमें क्या होता था, we used to get X amount of budget from the client. We used to create a plan और हम क्या करते थे, we used to drive traffic on their website. सीधा हम उनकी website पे traffic, but how much tickets are being sold on a daily basis, on कितना उनका sale हो रहा है, we were not accountable of that because our objective was to do the awareness for throughout the campaign. Yeah. So whatever X amount of budget we are spending for that particular campaign, that was purely focused on the awareness part. Let's say if client wants कि okay, let's say मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ and I want 50 lakh sales for that. So उसके लिए हम accordingly plan out करते हैं. So that's how we plan in paid media. It's not about कि मैंने बोल दिया कि मेरा पे करना है, मेरे को ad चलाना है, मैं कुछ भी चला दूँ. It totally depends on the objective. What is the budget? What are the best available platforms to leverage that particular asset? Be it your product, be it your services. We plan it accordingly. Got it? Okay. Got it. Thank you. Now just quickly talk about the since we are talking about the media, so it's all online and all electronic devices, be it your mobile device, your tablet, or your PC. So just to give you the idea कि अभी इंडिया में the population we have, it's right, and the active users that we have in India is 500 plus million users are active in India right now. So this is a very large number in terms of reaching out to people through online mediums, right? So we should be aware, everyone should be aware that what are the actual active users in our country कि Facebook पर हमारे कितने active users. Now I talk about कि Facebook पे there are 230 million plus users we have active on Facebook, but it doesn't mean कि ये 230 मिलियन सारे के सारे रोज एक्टिव बैठते हैं, रोज ऑनलाइन बैठते हैं. दिस इज द डेटा दैट वी गेट थ्रू द सोर्सेज. सो देयर आर प्लेटफॉर्म व्हिच गिव्स यू द डेटा इन टर्म्स ऑफ कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं, दे गिव यू द इनसाइट्स कि व्हाट कि लास्ट ईयर कितने, लेट्स से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मेरे 200 मिलियन यूजर्स है. नाउ दिस ईयर वी हैव 200 प्लस यूजर्स active on Facebook in India. So the idea, the basics to give to make you understand these numbers. So you guys should be available. Let's say if someone is coming, you are maybe you are interacting with the international client and they are looking forward to promote their product or services in India. So let's say they see ki what is the scope of on LinkedIn in India, right? So you are aware that how many active users are on Facebook or on Instagram or on LinkedIn, right? So you would say कि if we are looking for a mass reach, so we can go for Facebook as a medium to promote our products or services. It totally depends कि हमारा कौन सा platform we are selecting for the objective of the particular brand or business, right? So these are some numbers that we are looking at. So these are some latest number कि मेरे Facebook पे 230 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, 230 मिलियन प्लस मेरे यूजर्स एक्टिव यूजर्स हैं Instagram पे, and around 87 million users are active on LinkedIn. So the data that has been presented on the screen is from a platform with the name of Statistia. So that gives us the sources कि कितने कितने users है. You can I've mentioned the link as well, so you guys can later on go to that link and go to that platform and you can check कितने active users हैं Facebook पर, कितने users अभी मेरे चल रहे हैं, last year कितने users थे. You will get all the data, and these data are very helpful in terms of getting insights and learnings for your online platforms. मैं दिखा देता हूँ just to give you the idea कि कैसा दिखता है, how you guys can use these platforms, right? Screen visible है ना सबको? हाँ भाई. So guys, if you look at this tool, Statistia मैंने खोला है, so उस पे मैंने सीधा लिंक डाला हुआ है. So what I have done is मैंने उस पे Facebook का ऑडियंस मेरे को जानना था, so I have typed it on Google और मैंने Statistia का मेरे को सीधा लिंक खोल कर आया. So I can see there is a graph that I can see, right?
So मैं कंट्री वाइज चेक कर सकता हूँ कि फेसबुक पर कितने भी एक्टिव यूजर्स हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द एक्टिव यूजर्स ऑन फेसबुक, तो इंडिया इज ऑन द टॉप लिस्ट, राइट? So because there is a logic behind that, majority of majority of youth in India is young people, right? 70 से 80% सारे यंग लोग हैं, 20 से 30 साल की एज के लोग हैं, राइट? उसके बाद आपके 30+ आ जाते हैं जो इतना एक्टिव नहीं होते. इन अदर कंट्रीज देयर आर नंबर्स, बट we can see with the help of this data, इंडिया में ज्यादा हमारे यूजर्स एक्टिव हैं फेसबुक पे. So we can leverage that insight in terms of whenever we are planning any brand or any client to to help them convince कि कितने हमारे users हैं. We can help them to convince them कि यार, client might ask you कि why you are going on Facebook. So you can literally say कि sir, this is the numbers that we are looking at on Facebook right now, and there is a potential audience size that you can also mention. I'll come up to the potential audience wala part, but let's just understand these basics only, right? So similarly, you can search for other mediums as well. If you go through in your free time, just go through these tools, go to these platforms, you'll get many of the reports, social media user generated content. So if I click on that, so number of monthly active Facebook users worldwide as second quarter 2022. So कितने मेरे active users थे Facebook पे, I can get a fair understanding कि क्या चल रहा है. तो इट्स नॉट कि मेरे को पता ही नहीं है, मैं डेली फेसबुक के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, कैंपेन चला रहा हूँ, एंड वी आर क्रिएटिंग कंटेंट, मल्टीपल थिंग्स वी आर डूइंग फॉर अ सिंगल प्लेटफॉर्म. वी शुड बी अवेयर कि उस पे बेसिक क्या चल रहा है, क्या कितने लोग एक्टिव हो रहे हैं, कितने नहीं. दीज आर द नंबर्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. So in your free time, you guys can just go through it, and if you guys have any query, you can let me know. I'll just quickly move on to the next slide. So as I've told you, ki basics, we are discussing basics of media right now. So basic, I think everyone is aware, paid media promotions के लिए paid media platforms are Google, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Amazon, and there are more platforms which are which are for paid media promotion. But these are the most common platforms that everyone is aware and everyone is using in their day-to-day life. So just to give you the idea कि ad placement, everybody is about the ad placement. क्या क्या click हो रहा है ad placement? When I say ad placement, फोन, मोबाइल, डेस्कटॉप एड्स कहाँ प्लेस होंगे, साइड में बैनर में प्लेस हो सकती है. तो ad placement, when I say ad placement, क्या क्या हो रहा है? ad placement कहीं भी मेरा ad place हो सकता है. स्पेसिफिक जहाँ हमारी एड कहाँ पे चल रही है. इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं एड्स प्लेसमेंट, तो वहाँ पे मतलब फीड्स में भी हो सकता है, स्टोरीज वगैरह में जा सकता है, और एज मतलब जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारी पेज में ऐसे स्पॉन्सर्ड जा सकते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ प्लेसमेंट. ठीक है, ठीक है. फेसबुक पे अलग अलग जगह होती है जहाँ पर हम अपना मतलब प्लेसमेंट करा सकते हैं. एक स्पेसिफिक स्पेस दी होती है ना वेबसाइट पे कि आप इतनी सी जगह पे ऐड प्लेस कर सकते हैं. गौतम कुछ बोल रहा था. नहीं भाई, कुछ नहीं बोल रहा. ठीक है. सो गाइस, एड प्लेसमेंट इज लाइक, लेट्स से आप इमेजिन करो, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, उसने कपड़े पहने हैं और उसमें काफी सारी पॉकेट्स हैं. उसके राइट में एक पॉकेट है शर्ट के, उसके लेफ्ट में एक पॉकेट है. उसने जीन्स जो पहना है उसमें राइट में एक पॉकेट है, उसकी बैक पे 2 पॉकेट है. सो जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन एज अ वेबसाइट, राइट? और उसके पास जो अवेलेबल स्पेस है, उसके पास 4 पॉकेट है, टोटल 6 पॉकेट है, राइट? सो उसके पास और कोई जगह नहीं है ना सामान रखने की, राइट? सो ऑन दैट स्पेसेस ही कैन पुट समथिंग. So similarly, on the website, there are spaces on which we can place our ads, be it a video ad, be it a display ad, right? So we can count as a placement. So अगर जो मैं बात करता हूँ, so I have 4 spaces available where I can show banner ads. So these are the placements that we are looking at. So उनको बोलते हैं ad placement. It's kind of more technical, but इसको सीधा सीधा समझाने के लिए I'm giving you the example. A person, किसी एक बंदे को इमेजिन करो और सोचो उसने काफी ज्यादा पॉकेट्स वाली कोई शर्ट पहना है या फिर उसने कोई जीन्स पहना है, और जितने भी उसके पॉकेट्स अवेलेबल हैं वो उसके पास स्पेस अवेलेबल है टू पुट समथिंग. तो लेट्स से कि मैं उसको पॉकेट्स में रख देता हूँ, कोई मैं अपने ब्रोशर रख देता हूँ, राइट? सो दीज आर माय एड्स ऑन विच आई वांट टू शो. सो वो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा.
Get it? Guys, get it? Yes. Yes, माँ. Yes. Yes. God. समझ आ रहा है तेरे को है? हाँ. क्या होता है? एक चीज बता मान इसमें जैसे एड प्लेसमेंट जो तू बता रहा भाई, इसमें तुम्हारा वही तो आ गया ना कि एड्स हमें कहाँ पे जा रही है, स्टोरी पे जा रही है या फिर राइट. फीड्स में जा रही है. हाँ, बिल्कुल सही गौतम, यही है. तो जो तू एग्जांपल दे रहा है उसको, अब जो प्लेसमेंट है वो हम डिसाइड कर सकते हैं मैनुअली, राइट, कि हमें कहाँ रखवाना है. अब जो जो तूने एग्जांपल दिया है वो सही दिया, तो थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर दे. जैसे अब जो पर्सन है तुम्हारा, उसके पास 10 मतलब कि सॉरी 10 पॉकेट है, ठीक है. हमने उसे 100 रुपए दिए, 10-10 के नोट दिए, तो हम उसे बताएंगे कि कौन से वाला पॉकेट में कौन सा नोट रखना है, तो उसको ज्यादा स्पेसिफिकली हो जाएगा. तो हम चाहते हैं ना कि हमें कहाँ पे प्लेस करवाना है ऐड को, तो वो सही रहेगा, तो ये सॉर्ट हो जाएगा इसमें. क्योंकि इनको फिर उसमें गौतम. कंफ्यूजन हो सकती है कि हाँ. मतलब कि अगर मान ले तूने इसमें दो वो है तुम्हारे, अगर हमने उसको खुद से दे दिए 100 रुपए की, तू कहीं भी रख ले किसी भी पॉकेट में, ठीक है. एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया कि हम उसको बता रहे हैं कि ये 100 रुपए के जो 10-10 के नोट है तू इस पॉकेट में रख, तो वो तेरा स्पेसिफिकली हो जाएगा मैनुअल. तो गौतम, जो तेरा क्वेश्चन है, गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गौतम ने. तुम सबको भी ये चीज पूछनी चाहिए. क्वेश्चन नहीं है भाई, मैंने आंसर दिया है. आंसर तूने दिया है, बट ये तेरा एक तरीके से क्वेश्चन है. मैं बताता हूँ कैसे. तो तेरा स्पेसिफिक वाला है ना, वो होता है, बट वो इतना नहीं होता स्पेसिफिक. मैं चाहता हूँ कि मेरा एड ना सिर्फ राइट साइड पे ही दिखे. तो उसमें क्या होता है कि जो एड के जो प्लेसमेंट है, जैसे वेबसाइट पे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे 4 प्लेसमेंट है. एक तो मेरा हाँ. पूरा टॉप पे हो गया, तेरा टॉप बैनर हो गया. एक मेरा राइट में तुमने देखा हो, राइट साइड पे तुम्हें वेबसाइट के कुछ ऐड दिखता है. मैं तुम्हें अभी दिखा भी देता हूँ. इसी में दिख रहे हैं वेबसाइट में. वेबसाइट में भी दिख रहे हैं और वैसे भी हम देख सकते हैं. अब मैं किसी भी वेबसाइट पे जाके चला जाता हूँ, तो अभी हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये वेबसाइट मेरे सामने खुलकर आ गया है. हाँ. और ये ऐड प्लेस हो रखे हैं तेरे. ठीक है, अभी ये पूरा लोड नहीं हुआ है, इसमें यहाँ पर हमें एड्स दिखने चालू हो जाएंगे. ये देख रहा है, ये पूरा मेरा बैनर हो गया टॉप पे, राइट. तो ये वाला तो अपनी उसके अंडर आ गई ना, गूगल एड्स के अंडर आ गई है, फेसबुक के थ्रू थोड़ी चलेंगी. गूगल, मैं सिर्फ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की नहीं बात कर रहा. प्लेसमेंट मतलब देख, गूगल का फॉर्मेट अलग है. गूगल में हाँ, तेरा गूगल का फीड अलग में, है, सोशल गूगल मीडिया में वाला तेरा अलग है. गूगल में तेरा रील्स में अलग ऐड दिखता है. तो एक फीड का फॉर्मेट हो गया, एक तेरा रील्स का फॉर्मेट हो गया, राइट. एक तेरे को मैसेंजर में तुम जाते हो, तुम्हें मैसेंजर में भी बहुत बार ऐड. हाँ. तो वो सारे अलग अलग फॉर्मेट है जहाँ पर तुम्हें हाँ. ऐड प्लेस हो रहा है. अब जैसे ठीक है, मैंने जो अभी बोला है वो बोला था मैंने सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, ठीक है. लेकिन ये इसमें तो हाँ तेरा बिल्कुल डिफरेंट होगा गूगल में तो. हाँ, अब जैसे जहां जहां मुझे ऐड दिख रहा है ना, तो ये स्पेस, बेसिकली दिस स्पेस इज अवेलेबल टू पुट हाँ. समथिंग. हाँ. बाकी राइट. सब जहाँ मेरा कंटेंट है वहां पर मुझे सिर्फ कंटेंट ही दिखा है. लेकिन जहां पर मेरा अवेलेबल है, जहाँ वहाँ पर पे ऐड दिखा देगा. ऐसे, ये देखो, दीज आर द स्पॉन्सर्ड एड्स, राइट. ये टबूला के एड्स हमें शो कर रहे हैं. ये तो इन्हीं का अपना इंटीग्रेटेड वीडियो है. तो गाइज, ये मैं इन प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ. ये आपका प्लेसमेंट है ऐड का. बट इसमें क्या होता है कि इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते. गौतम, जो तेरा एक तूने तो पॉइंट ऐड ऑन किया था ना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड यहीं दिखे, तो टोटली डिपेंड, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म हमें लेवरेज देता है कि आप कौन कौन से साइज के क्रिएटिव चला सकते हो. तो ये 300 बाई 250 का चलता है अपना, और एक बड़ा वाला 728 वाला भी चलता है. तो अगर जो जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो स्पेस अवेलेबल है एंड पीपल आर बिडिंग वो ऑन वहीं दैट, रन करवा देगा उसको. ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा. बट समझ एक गए. एक स्पेसिफिक क्वेरी जो गौतम तू बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एड सिर्फ टॉप पर दिखे, दैट कैन बी डन. उसके लिए क्या होता है कि हमें मास, एक बड़े लेवल पे मीडिया बाई करना पड़ता है. लेट्स से कि मैं एनडीटीवी पे आज पूरा दिन मेरा ही ऐड दिखे और किसी का ऐड दिखे, सो वी कैन ऑल्सो डू दैट. बट उसके लिए हम एक पूरा प्रॉपर मीडिया बाई करना पड़ता है, पूरा टीम से वेंडर के थ्रू कनेक्ट करके. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना हम एक दिन का ले सकते हैं. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ
budgets that they charge for that. कि पूरा दिन वो Right. तुम्हारा रोड ब्लॉक बोलते हैं उसको basically, पूरे दिन वो आपका सिर्फ ad दिखेगा and then you guys whenever every time you are opening that website तुम्हें top पे सिर्फ वही ad दिखेगा because that particular brand or product is paying for that. समझ रहे हो? आप जो ये Right. बता कि मतलब हम लोग ऐसे वेंडर से बात करते हैं और स्पेस खरीद लेते हैं, इसको ही प्रोग्रामेटिक बाइंग बोलते हैं या फिर कुछ अलग है? It comes into the part of media buying. Programmatic is a category of running ads. ठीक है? It's like more advanced, more enhanced. उसमें artificial intelligence भी आपका काम कर रहा है, machine learning. Welcome. So guys, this particular session is about the basics. सिर्फ basic समझना है. So let's just stick on that. बाकी जो कोर में आगे टेक्निकल थिंग होंगे विल बी कवरिंग इनटू द नेक्स्ट सेशन. तो गौतम वो पॉसिबल है, लेकिन वो सिर्फ टॉप वाले बैनर्स पे होता है. अगर जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ ये प्लेसमेंट सही नहीं है ना, मेरा टॉप पे थोड़ी है. जो भी बंदा वेबसाइट आएगा सबसे ऊपर ही उसे दिखेगा. तो वो होता है, वो इन सम केसेस पॉसिबल होता है. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप लोग जब YouTube कभी-कभी सर्व करते हो, आपको एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का टॉप पे ही ऐड दिखता है, राइट. तो वो क्या होता है, वो रोड ब्लॉक होता है. रोड ब्लॉक मींस उन्होंने वो पूरे दिन के लिए मैंने वो पर्टिकुलर प्लेस खरीद लिया है एंड दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट फॉर दैट. वो मतलब आपका लाखों करोड़ों समझ लो, वो आपका बाई किया जाता है मीडिया एंड देन दे डू दैट एक्टिविटी. वो बट ये अमाउंट वेबसाइट पे डिपेंड करता होगा ना. जैसे YouTube अपने लिए हाई चार्ज कर लेता है, दूसरी वेबसाइट को लो चार्ज करेगा. करेक्ट. हर प्लेटफॉर्म का अपना एक खुद का एक विजिबिलिटी है. उसके पास कितना रीच आ रहा है उसका चार्ज फिक्स होता है. दे चार्ज ऑन देयर ओन मैट्रिसेस. कि उनके पास लेट्स से कि भाई मेरी वेबसाइट पे मैं देता हूँ रोड ब्लॉक, मेरे पास खुद की वेबसाइट है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास हर महीने 1 लाख यूजर आ जाते हैं मेरी वेबसाइट पे, तो तुम चाहो तो दिखा सकते हो. पूरा दिन में तुम्हारा ऐड दिखाऊंगा और मैं उस काम के आपको 2 लाख रुपए लूंगा एक दिन के दिखाने. बट if I compare myself with YouTube, तो YouTube ज्यादा बड़ा इन्वेंटरी है, राइट. YouTube के पास ज्यादा रीच है, ज्यादा यूजर्स है. सो द इम्पैक्ट एक दिन में जो इम्पैक्ट मेरी वेबसाइट पे डालने से आएगा उससे डबल इम्पैक्ट, उसका एक्स इम्पैक्ट सीधा मेरा YouTube से आ जाएगा, राइट. दैट कम्स इनटू द रोड ब्लॉक वाला पार्ट. बट उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारी ऑडियंस कहाँ पर ज्यादा करती है. राइट. हम बिना उसके मतलब कहीं भी चला दें ऐसे रैंडमली और वहां से फिर इतनी ट्रैक्शन ना आए, तो मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ आवर बजट, इट्स अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम. और इसमें ऐसा भी होता है ना कि हर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. तो जरूरी नहीं कि हमें पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे काफी ज्यादा ऐड देखने को मिले. हाँ, so every website कंटेंट हमेशा जो वेबसाइट जिसका होता है उसका ही होता है. सब कुछ स्पेसेस होते हैं जिसपे हम बैकलिंक्स भी तो ऐड देखें, है ना. राइट. तो जितने भी स्पेस अवेलेबल है उन्हीं स्पेस पे हमें एड प्लेसमेंट होता है और वो बिडिंग के बेसिस पे चलता है. दिस इज काइंड ऑफ मोर टेक्निकल, बट बेसिक समझो कि एड प्लेसमेंट होता क्या है. ठीक है. अब when I say ad placement, everybody is clear कि ad placement होता क्या है. अब जब ad whenever you are browsing any website और Facebook और Instagram आप ad देख रहे हो, तो वो ad आपके सामने आया कैसे. ऐसे नहीं कि आपने ad बनाया और वो सीधा सीधा आपको दिखने लगा. एक बेस है, पूरा बेस के साथ आपका चल के हो रहा है. आप स्टेप बाय स्टेप आते हो ना. आप सुबह उठते हो, आप सुबह उठते ही सीधा ऑफिस नहीं आ जाते. आप सुबह उठते हो, फिर फ्रेश होते हो, आप रेडी होते हो, देन आप ट्रैवल करके आते हो, देन यू ट्रैवल एंड देन यू कम टू द ऑफिस. फिर आप रिपोर्ट करते हो, आप मीटिंग करते हो, आप स्टेप बाय स्टेप करते हो ना. देन एट द फ्रंट कि आप जाके क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो कि ये चल रहा है, दिस इज द रिपोर्ट, दिस इज द वर्क दैट आई हैव डन. बट बैक एंड पे आपने काफी चीजें की हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चीजें आपके आ रही हैं, राइट. सो ऐसे ही एड प्लेसमेंट में क्या होता है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट पर जा रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या है कि मेरे को जो ऐड दिख रहा है, सबसे पहले क्या होता है उसका वो एक इम्प्रेशन सर्व होगा, राइट. दैट विल कम एज एन इम्प्रेशन कि जो मेरा ऐड मुझे दिख रहा है, मैंने फिर दूसरा वेबसाइट पे गया, मुझे ऐड दोबारा दिखा. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द बेस, वो इम्प्रेशन है. फिर वो इम्प्रेशन जब होगा उसके बाद मेरा ऐड दिखेगा उसमें, जो हमें पूरा विजिबल दिखता है, बैनर दिखता है, राइट. फिर उसके बाद हमारा जो उस पे मीडियम होता है वो बैकएंड पे, कि मैं उसको क्लिक पे चला रहा हूँ, मैं उसको वीडियो है तो व्यूज पे चल रहा है, लोग जितने व्यूज देख रहे हैं वो व्यूज काउंट कर रहा है, या लोग उस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिक काउंट कर रहा है, राइट. तो उसका ये पूरा बेस है कि पहले इंप्रेशन होता है, फिर उसके बाद आपका ऐड होता है, फिर उसके बाद आपका उसका मीडियम क्या है, बीट, क्लिक्स, व्यूज, उसके बाद आपका डेस्टिनेशन क्या जा रहा है. जो इम्प्रेशन होता है वो डिफरेंट साइड से आता है.
इम्प्रेशन इज कि जब भी आपको ऐड दिख रहा है ना, इट इज द बेस, वो बेस है। अगर जो मेरा इम्प्रेशन ही सर्व नहीं होगा तो मेरा ऐड ही नहीं दिखेगा। सो मैं किसी वेबसाइट पर ऐड देख रहा हूँ तो वो एक इम्प्रेशन है जो मुझे दिख रहा है। तो फर्स्ट दैट इम्प्रेशन इज द बेस। फिर इम्प्रेशन जब सर्व हो रहा है उसके ऊपर मेरा ऐड लगा हुआ है, राइट। उसके बाद मेरा ऐड के ऊपर मेरा CTA लग रहा है। अगर जो मेरा बैनर चल रहा है तो क्लिक्स पे चलाऊंगा, दैट इज ऑब्वियस, राइट। मे बी मैं वीडियो चला रहा हूँ तो मैं उसको व्यूज पे चला रहा हूँ, राइट। दैट इज द थर्ड बेस। फिर उसके बाद तो व्यूज ऐड आपका विजिबल हो रहा है, वो आपका इम्प्रेशन है, राइट। मैं उसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ वीडियो को, बट मुझे ऐड प्लेस दिख रहा है, तो वो एक इम्प्रेशन आ रहा है। हाँ, विजिबिलिटी, दैट इज द बेस। अगर जो इम्प्रेशन ही नहीं सर्व होगा तो आपके क्लिक्स ही नहीं आएंगे, समझ रहे हो। जब तक इम्प्रेशन सर्व नहीं होगा, अब मेरा फॉर्मेट बैनर चल रहा है, बैनर पे क्लिक्स पे चला रहा हूँ, तो जब तक मेरा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, ऐड नहीं दिखेगा, तो लोग क्लिक कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड दिस, ये जर्नी है। हाँ हाँ, समझ आ गया ना इम्प्रेशन। ये डाउट है, बताओ बताओ। जैसे व्यूज जब कोई भी ad थोड़ा चल रही है, एक मिनट, थोड़ा तेज बोल जिससे और लोग भी हैं सुन रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो व्यूज है, तो व्यूज और इम्प्रेशन मतलब किस हिसाब से काउंट, यानी कि व्यूज मतलब मैंने देख लिया तो वो देखने के बाद काउंट होगा या नहीं होगा, और सेम चीज इम्प्रेशन के साथ। तो मैं ये चीज समझना चाह रहा था कि मतलब व्यूज जैसे क्लिक तो मैं समझ गया, मैं क्लिक करूंगा उस चीज पे तो वो क्लिक काउंट होगा, ठीक है, और मैं देख भी रहा हूँ तो व्यू भी काउंट होगी, बट व्यू और इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देख, इम्प्रेशन इज दी बेस। जब तेरा ऐड तुझे दिख रहा है ना, तो कुछ नहीं कर रहा, तो उस पर कमेंट नहीं कर रहा है, तो उसे लाइक नहीं कर रहा है बैनर पे, ऐसे समझ इसको। इसमें अमान एक मेरा क्वेरी ये है, जैसे ये हर्ष जो बोल रहा है इम्प्रेशन और व्यूज वाला, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या डिफरेंशिएट, की जैसे इम्प्रेशन होता है वो बेसिकली तेरा उसके लिए माना जाता है स्टैटिक के लिए, कोई नहीं भी इमेज नहीं हो गया, गौतम, और व्यूज वीडियो के लिए। नहीं, देख समझ, इम्प्रेशन जब तक इम्प्रेशन सर्व नहीं होगा ना, मेरा ना तो क्लिक आने वाला, ना मेरा व्यूज आने वाला है। पहला हम्म पहला मेरा जो प्लेसमेंट होगा ऐड का, गाइस सुन लो सब, पहला जो प्लेसमेंट होगा वो इम्प्रेशन है। अगर जो मेरा इम्प्रेशन ही नहीं पड़ा तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा। इम्प्रेशन का मतलब अच्छा सीधा सीधा ये समझो, ये ऐड जो दिख रहा है ये इम्प्रेशन है। अब जैसे मेरे को ये किसका, लुफ्थांसा का ऐड दिख रहा है, अब मैं किसी और वेबसाइट पे जाता हूँ, मुझे दोबारा दिख रहा है ये ऐड, तो ये इम्प्रेशन है। जब दोबारा हाँ, दिखेगा तब रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा ना, अभी तो हर बार जितनी बार भी दिख रहा है मेरे को, वो काउंट हो रहा है एज एन इम्प्रेशन। ठीक है। एक जैसे इसमें अपने हमने कोई भी वीडियो कैंपेन चलाया, ठीक है, किसी भी वीडियो के लिए, और डजेंट मैटर वो सोशल मीडिया पे चल रहा है या फिर गूगल पे चल रहा है, तो वहां पर क्या इम्प्रेशन तेरा काम करेगा, वहां आता है इम्प्रेशन हाँ, वीडियो का? सब जगह वही मैं बताना चाह रहा हूँ। गाइस गाइस, खुद से डिस्कशन नहीं करना, मेरे से पूछ लो। अंडरस्टैंड दिस कि क्लिक्स व्यूज आने से पहले जब ऐड प्लेस हो रहा है, उसको सीधा सीधा समझो, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझो। जो ऐड आपको दिख रहा है, एक ही ऐड आपको 10 बार दिख रहा है, 50 बार दिख रहा है, या एक बार दिख रहा है, वो इम्प्रेशन हो गया। जब ठीक आप है। उस ऐड को देखने के बाद, ये ऐड है, ये मैं देख रहा हूँ, ये एक इम्प्रेशन हो गया सर मेरे को, अब मैंने इस पे क्लिक किया ना, ये मेरा क्लिक अब काउंट होगा। अब Got काउंट it? होगा। ये जो डेफिनेशन है इंप्रेशन का और क्लिक का, नहीं देख, जैसे अमान मेरा अलग वर्ड सेम ही रहता है। चाहे वो हम यूट्यूब पे भी ट्विटर पे भी हाँ। इंप्रेशन का मतलब यही है। हाँ, कि एड्स आपका दिख रहा है, दिख रहा है सीधा आपको ये मेरे को दिख रहा है, ये इम्प्रेशन हो गया मेरा। टेक्निकल टर्म में समझो, ये ऐड डिस्प्ले हो रहा है, जब तक ये इम्प्रेशन नहीं सर्व होगा तो मैं इस पे क्लिक ही नहीं कर सकता ना। मेरे को जब ऐड दिखेगा ही नहीं, मैं क्लिक कैसे करूंगा। यहाँ पे वीडियो चल रहा होता, तो हर जो तेरा क्वेश्चन था वीडियो व्यूज वाला, नहीं, मेरा ये था कि जो इम्प्रेशन है और व्यू है वो किस हिसाब से काउंट होता है, मतलब मैंने इम्प्रेशन मतलब मैंने देखा तो वो व्यू एज अ व्यू काउंट हो गया या एज अ इम्प्रेशन? आ रहा हूँ तेरे क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। सो पहला बेसिक ये है कि जब तक आपका इंप्रेशन सर्व नहीं होगा तो आपका ऐड ही नहीं चलेगा। जब तक आपका ऐड नहीं दिखेगा तो आपका इंप्रेशन ही नहीं काउंट हो रहा है। अब वही सेम ऐड आपको बार बार दिख रहा है, आपको 10 बार दिखा। लेट्स से रिया अपना फोन पर फेसबुक चला रही है, उसने टैश शेयर का ऐड देखा, उसको फीड्स में ऐड दिखा, फिर उसने अपना फेसबुक बंद किया, फिर वो इंस्टाग्राम पर गई,
फिर उसने इंस्टाग्राम अपना देखा, उसने फीड्स में फिर ऐड देखा डैश एयर का। तो अभी क्या है, उसने तुमने लाइक नहीं किया उसको, पोस्ट को लाइक नहीं किया, तुमने उस पे सीटिया था, उस पे क्लिक नहीं किया, सो वो तुम्हें 2 बार ऐड देखा, सो तुम्हें 2, दैट विल बी काउंटेड एज 2 इंप्रेशंस। समझ रहा है? जब रिया उस ऐड को देखने के बाद उस पे क्लिक कर रही है, दैट विल बी काउंटेड एज क्लिक। या वो वीडियो है, वो वीडियो पूरा देख लीजिए, दैट विल बी काउंटेड एज व्यूज। अच्छा, तो तेरा तो ये गिवन टाइम होता है, उस टाइम के बियॉन्ड देख लेंगे तो व्यू As a view count. सो व्हेन आई से कि व्यू उसने देख लिया है, हर प्लेटफॉर्म का, बी इट फेसबुक, बी इट इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म का एक अपना मेट्रिक है व्यूज को काउंट करने का। कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है, मैट्रिक्स है उसको व्यूज को काउंट करने के लिए। लेट्स से किसी ने 10 सेकंड तक ऐड देखा तो मेरा व्यू काउंट हो गया, लेकिन 10 सेकंड से पहले उसने मेरा ऐड बंद कर दिया या उसने स्किप कर दिया, वो मेरा काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा इंप्रेशन में चला जाएगा। समझ रहे हो? सो कुछ प्लेटफॉर्म्स 30 सेकंड पे भी डालते हैं। सो देयर आर मैट्रिसेस दैट वी कैन डिफाइन कि हाँ मेरा 10 सेकंड देखने वाले लोग कितने थे, मेरे ऐड को, व्यूज को 30 सेकंड कितने लोगों ने देखा, तो दैट इज द डेटा दैट वी गेट ऑन बैक एंड लेवल। बट तेरा व्यूज ऐसे काउंट होता है ड्यूरेशन के बेसिस पे। समझ रहा है? ऐसा नहीं है कि ऐड आया और वो चल रहा था, मैंने स्क्रॉल अप कर दिया, मेरा व्यूज काउंट हो जाएगा, नहीं होगा। समझ रहा है? तो अमान फिर इंप्रेशन और रीच में भी मतलब एक डिफरेंस बताओ फिर। उन दोनों में क्या बता रहा हूँ मेन डिफरेंस? गाइस, एवरीवन इज क्लियर ऑन इंप्रेशन, या किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ जैसे ये अकाउंट से लोगों का इंप्रेशन काउंट होता है। अब मैं जैसे मेरा जीमेल है, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट पे चेक किया, सेकंड वेबसाइट पे भी सेम है, तो वो सेम दो काउंट, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट ना। गॉट इट? कि एक प्लेटफॉर्म आपका गूगल है, आपको गूगल की प्रॉपर्टी पे दिख रहा है, गूगल पे मैं सिर्फ वेबसाइट की बात कर रही हूँ। तो एवरी टाइम अगर जो आप दूसरे वेबसाइट पे देख रहे हो, इट विल बी काउंटेड सेपरेटली। मैं इसी वेबसाइट को दोबारा बंद करके दोबारा अगर जो खोल रहा हूँ, फिर मुझे दोबारा ऐड दिख रहा है, वो दोबारा काउंट हो जाएगा। जितनी बार वो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, वो मेरा काउंट होगा एज एन इम्प्रेशन। नाउ जो क्वेरी है ईशा का, रीच क्या होता है कि मैंने एक ही ऐड को इंस्टाग्राम पे भी देखा, फेसबुक पे भी देखा, गूगल पे भी देखा, 3 प्लेटफॉर्म से मैंने एक ही ऐड को 3 बार देखा, तो 3 बार मुझे दिखा, तो दैट विल बी काउंटेड एज 3 इंप्रेशंस। मेरे को 3 इंप्रेशंस दिखे। नाउ वही ऐड मिहिर ने 5 बार देखा अपने फोन में। एक इसने स्नैपचैट पे देख लिया, इसने फेसबुक पे देख लिया, इसने इंस्टाग्राम पे देखा, इसने गूगल पे देखा, और किसी और इसने यूट्यूब पे देख लिया, तो 5 इंप्रेशन ही हो गए। बट इसी ऐड को देखने वाला मिहिर एक बंदा है, ठीक है, और दूसरा कौन था? ईशा। तो देखने वाले कितने लोग हैं एक ही ऐड को? 2। और ऐड कितनी बार दिखा है? तेरे को 3 बार दिखा, तेरे को 5 बार दिखा, कितने कितने टोटल 8। तो वही सेम ऐड 8 बार सर्व हुआ 2 लोगों को, ठीक है। तो देखने वाले 8 बार ऐड दिख रहा है, लेकिन सिर्फ देखने वाले 2 हैं। सो यूनिक इंडिविजुअल हु इज वाचिंग द ऐड विल बी काउंटेड एज 1 रीच। तो इस केस में रीच जो हुई है हमारी 2 हुई है, क्योंकि उस ऐड को 8 बार जब वो सर्व हुआ है, देखने वाले सिर्फ 2 लोग थे, एक तो मिहिर, दूसरा ईशा। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन हो गई है आपकी, तो शी विल बी काउंटेड एज 1, एक रीच ही हो गई। अगर जो ये वही ऐड बार बार देखती रहेगी, उसको 10 बार भी दिख रहा है या 50 बार दिख रहा है, बट रीच एक ही रहेगी, क्योंकि ईशा ही देख रही है। मे बी फिर उसके बाद अजय को वो ऐड दिखना स्टार्ट हो गया, अजय ने उसको सर्व कर लिया, अजय ने देख लिया है, तो वो दोबारा काउंट हो जाए, क्योंकि अजय इज अ डिफरेंट पर्सन। तो यूनिक इंडिविजुअल्स हु आर वाचिंग द सेम ऐड विल बी काउंटेड एज 1 रीच। तो 4 लोग, अभी हम कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। आप 5 लोग एक ही ऐड अपने अपने फोन पे देखते हो, तो आपको ऐड दिखा है 10 बार, 50 बार, लेकिन देखने वाले आपसे 5 लोग हैं, तो मेरा रीच 5 होगा। इट डजंट मैटर कि मेरा ऐड 10,000 बार दिख रहा है, 50 बार दिख रहा है, 100 बार दिख रहा है, लेकिन देखने वाले जितने यूनिक यूजर्स हैं, वो मेरा रीच हो जाएगा। गॉट इट? समझ आया? मेरा क्वेश्चन इस पे ये है, काउंटर क्वेश्चन, कि आपने बोला कि स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर सब पे दिख रही है, तो वो मेरे इतने सारे इंप्रेशंस हो गए और रीच मेरी एक ही रहेगी, क्योंकि मैंने एक ने देखा है। बट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे तो अलग अलग रीच निकल के आती है। वो कैंपेन तो एक ही चल रहा है ना। अगर जो अलग अलग जो जोड़ के बताए, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जोड़ के बताए। प्लेटफॉर्म्स मत काउंट करना।
जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हम जाने लोग भी तो डिफरेंट हो जाएंगे ना उस पे कैंपेन के। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। आईपी एड्रेस या तुम्हारा जो आईडीज है अगर एक ही पर्सन के हैं सारे, तो अपने आप को कंसिडर कर कि वो वही ऐड देगा। मेरा क्वेश्चन समझो। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फेसबुक से एक ऐड देख रही हूँ ताश की, ठीक है, सेम वो ऐड मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम भी अपनी एक रीच काउंट करेगा और फेसबुक भी अपनी एक रीच काउंट करेगा ना, तो अलग अलग रीच काउंट होंगे ना। ये क्वेश्चन बट मेरे कैंपेन लेवल पे तो मैं एक ही काउंट करूंगा ना। अगर जो मुझे 10,000 रीच दिख रही है इंस्टाग्राम पे और 10,000 मेरे को फेसबुक पे दिख रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि सिमिलर लोग ही देख रहे हैं। अच्छा, इसको लेट्स नॉट कंफ्यूज दिस। तू ये समझ कि तूने इंस्टाग्राम पे ही 10 बार ऐड देखा और तू नहीं देखा, तो हाँ, तो रीच मेरी एक एक ही होगी, होगी। इंप्रेशंस मेरे हाँ, 10 हाँ। हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, ये क्लियर होगा है? ना? हाँ, क्लियर। डाउट है किसी को? कोई क्वेरी है ऐसा पूछ फिक्स लो। है कि इंप्रेशन ज्यादा ही आएंगे रीच। ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक सी एड प्लेसमेंट का बेस समझो ना, एड जब तक आपको दिखेगा ही नहीं, जब तक आपका इंप्रेशन सर्व नहीं होगा। सो ये बेस है कि आपके मीडियम्स हो गए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, उसके बाद इंप्रेशन सर्व हो रहा है, फिर आपको ऐड दिख रहा है। ऐड वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बैनर में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, या फिर कोई स्टैटिक पोस्ट हो सकता है, कराउजल हो सकता है, जिफ हो सकता है। वो ऐड का फॉर्मेट है। फिर आप उस पर किस मीडियम के थ्रू जा रहे हो, उस ऐड से क्लिक कर रहे हो, व्यू देख रहे हो उस ऐड का, या फिर उसको सिर्फ रीच कर रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, एंगेजमेंट कर रहे हो। तो दीज आर द मल्टीपल मीडियम्स। वो बैकएंड पे जो कैंपेन चला रहा है वो उसको ऑब्जेक्टिव, वो आपको ऐड कैसे दिखाना चाह रहा है। सेम पर्सन की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वही सेम ऐड देगा, तो वही ईशा का क्वेश्चन वही है। वो सेपरेटली फिर उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काउंट होगी एक, वो डबल नहीं हो जाएगा। उसके लिए उस मैट्रिक में वो अलग अलग काउंट होगा। यार इस फेसबुक पे मेरी एक रीच है, इस पे भी एक रीच है, एक रीच है। और फिर ये जैसे आपका कैंपेन चल रहा है, तो फिर आप रीच कैसे काउंट करते हो? आप ओवरऑल काउंट करते हो या प्लेटफॉर्म वाइज आप रीच काउंट? हम प्लेटफॉर्म वाइज भी करते हैं और ओवरऑल भी करते हैं। तो आप ओवरऑल कैसे निकालते हो अगर सेम पर्सन ही सारे प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा है? तो वो हर प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअली काउंट हो रहा है ना आपका, तो वो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ही हम देख रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हारा क्वेरी समझ गया हूँ। मैं उस पर्सन को चाहता हूँ कि वो सिर्फ फेसबुक पे ना देखे मेरा ऐड, मैं चाहता हूँ वो इंस्टाग्राम पे भी देखे, मैं चाहता हूँ वो मेरा यूट्यूब पे भी देखे। बट वो पर्सन फेसबुक पे देख रहा है तो मेरा एक बार काउंट हो गया रीच, वो मेरा इंस्टाग्राम पे देख रहा है मेरा सेकंड टाइम काउंट हो गया रीच, तो मेरे लिए तो वो यूनिक हो गया ना, क्योंकि मैंने आपको हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग दिखाया, तो मैं हर प्लेटफॉर्म को अलग अलग एनालाइज कर रहा हूँ। गॉट इट? देन ऑन द कैंपेन लेवल जब मैं उसको फाइनल देखूंगा, मैं ऑल ओवर अपना रीच काउंट करूंगा, मैं कितने लोगों तक पहुंच गया हूँ, यूनिक लोग तक। गॉट इट? तो जो हम आगे सर्व करते हैं, मतलब अगर दिखाना हो तो इंप्रेशन से अच्छा है कि हम रीच दिखाएं अपने क्लाइंट। इम्प्रेशन हमेशा ज्यादा होगा। सो एज आई सेड इट अर्लियर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव। क्लाइंट चाहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कितने क्लिक्स आए हैं मेरे पास, मेरे कितने लोग, जैसे अभी हम MEA का कैंपेन चला रहे हैं, तो वहां पर हमारे लिए KPI है क्लिक्स, बिकॉज द मोर क्लिक्स वी आर गेटिंग, द मोर पीपल आर गोइंग ऑन दी BMS लैंडिंग पेज। तो मैं इंप्रेशन से मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट इंप्रेशन आर सर्विंग, इंप्रेशन सर्व हो रहे हैं, पर क्लिक्स जब आएंगे मेरे लिए वो बेनिफिशियल है इस केस में। अगर जो मेरे को सिर्फ क्लिक्स नहीं चाहिए, मेरे को सेल ही नहीं करानी, मैं चाहता हूँ ज्यादा लोगों को दिखे, देन इन दैट केस आई विल फोकस ऑन रीच। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोग मेरे ऐड को देखें। अगर जो मेरे 10 लाख इंप्रेशन आ रहे हैं, मैं एटलीस्ट चाहूंगा 5 लाख लोग तो मेरा ऐड देखे ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी सिर्फ आपके पास एक एक लोगों ने देखा, मतलब मैंने ही सारे प्लेटफॉर्म पे एक एक बार देखा, तो सब पे यूनिक रीच एक हो गई, बट आप ओवरऑल क्या निकालेंगे? 1 रीच। वो काउंट हो गया, अगर जो तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग दिखा रहा है तो 3 काउंट हो गया, क्योंकि वो तीनों प्लेटफॉर्म का अलग अलग काउंट कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरे पास 3 का रीच है। देखने वाले तुम हो या कोई और हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट गाइस? क्लियर? किसी और का क्वेश्चन है? So moving forward,
सबको पता ही है, एवरीबॉडी इज अवेयर, टेक्स्ट एड्स फॉर्मेट्स होते हैं, बैनर एड्स होते हैं, वीडियो एड्स। देखा अवेयर, टेक्स्ट एड्स इज लाइक कि जो आप गूगल पे डाल रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो आपको टेक्स्ट एड है। बैनर एड इज लाइक जो आपको बैनर दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, राइट, वो बैनर एड। वीडियो एड्स लाइक कि वीडियो चल रहा है। एंड स्टैटिक इमेज की आपका पूरा, आप फेसबुक पे जा रहे हो, आपको एक इमेज दिख रहा है, वेरी वेल अवेयर दिया। ठीक है, क्राउजल का अवेयर हो, स्लाइडर्स आते हैं 4-5 एक साथ, so that is a format we call carousel ads। सिमिलर है, देखने में सेम ही लगता है सब, बट फॉर्मेट का नाम है, बिकॉज बैकएंड पे हम वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा फॉर्मेट लेके जाना है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर कि किस तरीके के एड फॉर्मेट्स होते हैं। सो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए डाला हुआ है। आई जस्ट क्विकली मूव नाउ। दिस पार्ट इज रिलेटेड टू मीडिया बाइंग। सो करंटली अभी हमने बात किया है अभी तक हमारा पेड मीडिया क्या होता है, पेड मीडिया पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हम ऐड चला रहे हैं, मोस्ट कॉमन, एंड सेकेंडली कि हमारा ऐड फॉर्मेट काम कैसे कर रहा है। गॉट इट। तो अब वो सब चलाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि मैं, लेट्स से कि मुझे वीडियो दिखाना है क्लाइंट को, तो मैं वीडियो दिखाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ वीडियो लोग देखें, व्यूज आए मेरी वीडियो पे। तो I'll क्रिएट अ कैंपेन जिसपे फोकस होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा व्यूज देखें। So just to give you the basic idea, backend पे we have the manual possession of the tools जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को हम दिखा सकते हैं हमारे एड फॉर्मेट्स। मैं चाहता हूँ कि लोग क्लिक करें मेरे एड पे सिर्फ, एंड आई कैन रन दैट पर्टिकुलर एड ऑन क्लिक्स। मैं चाहता हूँ लोग मेरे व्यूज देखें, एंड आई कैन क्रिएट दैट एड फ्रॉम बैकएंड जस्ट टू मेक पीपल व्यू द एड ओनली। So media buy is one thing कि मैं चाह रहा हूँ, जैसे MEA के केस में, so MEA के लिए हम क्या कर रहे हैं guys, if you all are aware, MEA में हमारा इवेंट होने वाला है जिसके लिए हमें टिकट बुक्स करानी है, राइट। तो वो टिकट बुक होगा, एक बुक माई शो का वेबसाइट है, वहां पर जाकर टिकट बुक करोगे आप। बट बंदा एड देख रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर गूगल की किसी वेबसाइट पे, और उसे हमें बुक कराना है टिकट बुक माई शो की वेबसाइट पे, राइट। सो द बेसिक थिंग इज कि मुझे उसको वहां पर लेके जाना पड़ेगा, दैट इज ऑब्वियस, जब मुझे उसे दिखाना है। तो I'll go for the CPC, क्योंकि वो क्लिक करेगा, मेरे ऐड पे क्लिक करेगा, तभी वो वहां पर लैंड करेगा ना। तो दैट इज द बेसिक थिंग, दैट इज द KPI दैट वी डिफाइन। ऐसा नहीं होता कि हमें खुद पता चल जाता है हमें करना क्या है। अगर जो मैं वीडियो चला रहा होता है यहाँ पे, तो वीडियो पे मैं चाहता कि मेरे लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, तो मैं व्यूज पे फोकस करता, या फिर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद बंदा क्लिक करे, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मे बी क्लाइंट, इन सम केसेस क्लाइंट हमें बताता है यार मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा रीच करें, तो वहां पे फिर हम रीच बेस्ड एड चलाते हैं। मैं चाहता हूँ लोग ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स करें, वहां पर हम क्लिक बेस्ड एड चलाएंगे। मैं चाहता हूँ लोग ज्यादा से ज्यादा व्यूज देखें, तो हम व्यू बेस्ड एड चलाते हैं। तो दैट कम्स इनटू द मीडिया बाइंग। मीडिया बाई करने का मतलब ये है कि मैं क्लिक्स पे ऐड चला रहा हूँ, मैं क्लिक बाई करना चाह रहा हूँ, मैं व्यूज बाई करना चाह रहा हूँ, मैं या CPM पे भी चलाता हूँ। सो देयर इज अ फैक्टर विच इज इम्प्रेशंस, कि लोग इम्प्रेशंस पे भी ऐड बाई करते हैं। मेरे को मतलब नहीं है कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं है कितने लोग देख रहे हैं मेरा ऐड, पर मैं चाहता हूँ मेरे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रेशन सर्व हो, ज्यादा से ज्यादा मेरा ऐड दिखना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस CPM पे जब हम ऐड चलाते हैं, इट्स फॉर द अवेयरनेस पर्पस। जितने ज्यादा इंप्रेशन सर्व होंगे उतने ज्यादा लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। अब उसके बाद मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी क्या डिलीवरेबल्स है। गॉट इट। इंप्रेशंस तो पर आप कह रहे हो ना कि इंप्रेशंस तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब एक इंसान को बहुत बार ऐड हाँ, दिख सकती है। एक ही ऐड तो तुझे 10 बार दिख रहा है तो 10 इंप्रेशन हो गए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अवेयरनेस में तो हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ना, तो हम तो रीच देखना चाहेंगे ना उस चीज में। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग दैट एड फॉर्मेट। मैं चलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जब पैसा कटेगा टूल से, वो तो CPM पे तो उससे दैट, सो वी आर डिस्कसिंग मीडिया बाई। मैं CPM पे बाई कर सकता हूँ ऐड। बाई का मतलब ये है कि मैं ऐड को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे चला रहा हूँ। सो व्हेन आई से बाई, मैंने उस पे एक चला दिया ऐड, उस पर मैंने 5 रुपए का बिड चला दिया। जैसे मैंने 5 रुपए बोल दिया फेसबुक को, भाई मैं 5 रुपए दे सकता हूँ एक क्लिक पे, तुम इस पे चला दो मेरा ऐड क्लिक्स पे।
अब उस 5 रुपए की वो इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग ही वो मेरा ऐड चलाएगा, वो 5 रुपए से ऊपर मुझे चार्ज ही नहीं करेगा, एंड आई विल गेट चार्ज विद इन द रेंज ऑफ 5 रुपीज इफ समवन इज क्लिकिंग ऑन माई एड। ये सीपीएम 1000 इंप्रेशंस पे है। मैं क्लिक्स की बात कर रहा हूँ, इम्प्रेशन पे बात कर रहा हूँ तो इम्प्रेशन पे मेरा अलग रेट आएगा, 70 रुपए 80 रुपए 1000 इम्प्रेशन। गॉट इट। मैं व्यूज पे बात कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट पर व्यू पे जाता है, तो एवरेज व्यू आपका जो कॉस्ट पर व्यू जाता है 30 पैसे जाता है। किसी ने मेरा ऐड देखा यूट्यूब पे 30 सेकंड्स तक उसने मेरा वीडियो देखा है, तो दैट आई विल बी चार्ज बाय यूट्यूब कि आपके 10 लोगों ने आपका वीडियो देखा है 30 सेकंड तक, 10 पैसे का आपका कट रहा है एक व्यू, तो मेरा उसके अकॉर्डिंग मेरा वहां से पैसा कट जाएगा। So we are buying that media through the different medium, be it click, be it video views, be it impressions. So we have the control कि हम मीडिया बाई कर सकते हैं। What is the difference कि हम बाई कैसे करते हैं, totally depends कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। So हर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम अलग मीडिया बाई कर सकते हैं। क्या हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि यूट्यूब पे जो हम वीडियोस एड फॉर्म में चला रहे हैं वो किस तरह के यूट्यूब वीडियोस पे चलेंगे, ये भी ऑप्शन होता है हमारे पास? होता है। So when you go on to the backend level, so there are backend tools. YouTube पे हमारे पास पूरा विजिबिलिटी होता है कि हम YouTube पे किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, उनको व्यूज दिखाना चाहते हैं। इवन यू कैन क्रिएट एंड कंपाइल अ लिस्ट ऑफ चैनल्स कि मैं चाहता हूँ कि ये टॉप चैनल्स है यूट्यूब के, यहाँ पर मेरा एड दिखना चाहिए। So on that level we can do the targeting, but as this session is for the basics, so just get an understanding of the basics कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एड फॉर्मेट किस किस लेवल पे चलते हैं। अब लेट्स से एक क्लाइंट कम्स एंड क्लाइंट सेज कि यार मेरे को क्लिक्स पे ऐड चलाने हैं, क्या क्या तरीका है। आप क्लाइंट का ब्रीफ देखते हो, क्लाइंट चाह रहा है कि अवेयरनेस हो, लेकिन क्लाइंट बोल रहा है आपको क्लिक्स पे चला रहे हो, तो इन दैट केस यू आर अवेयर ना कि सर आपको चाहते हो लोगों को दिखाना चाह रहे हो तो आप व्यूज पे चलाओ ना। क्लिक से आपको फायदा नहीं होगा, लोग क्लिक करेंगे, वो मेरे को चार्ज ज्यादा लगेगा, व्यूज पे मेरे को कम पड़ेगा। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन कि हमारे लिए बेस्ट बाई क्या होगा मीडिया। गॉट इट। क्वेरी किसी का, जो लोग ऑनलाइन है उनकी कोई क्वेरी है किसी की मीडिया बाई से रिलेटेड? नहीं है मान। सो मीडिया बाइंग के बाद आता है, सो व्हेन वी डू द मीडिया बाइंग, मीडिया बाई करने के बाद हमें कैंपेन को चलाना है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लिक पे ऐड चला दिया और वो चल रहा है बस कुछ नहीं हो रहा उसमें, उसको हमें सक्सेस बनाना है। व्हेन आई से सक्सेस, मैं चाहता हूँ कि मेरे 50,000 क्लिक आ जाए इस कैंपेन से, या मैं चाहता हूँ 1 लाख क्लिक्स मुझे लाने हैं, तो उसको चलाने के लिए, उसको 1 लाख क्लिक्स लाने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन दैट। So that is our core job, being the media team. That is our job कि हम उसको क्लिक्स पे कैसे लेकर आएंगे, हम अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे इन द मिनिमम कॉस्ट और मे बी इन द गिवन और अप्रूव्ड बजट बाय क्लाइंट्स। सो ये एक छोटा सा ग्राफ है जो दैट आई फॉलो कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। व्हेन आई से कम्युनिकेशन की जो मेरा रूट है, मैं वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ अपने कैंपेन में, या फिर क्रिएटिव ऐसे चला रहा हूँ, क्राउजल क्रिएटिव, उसमें फ्रेम्स मैंने बना दिया स्टेप बाय स्टेप। आई एम शोइंग माई प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप कि स्टेप 1 आप पावर ऑन करो, स्टेप 2 आप इसको यहाँ से एक्टिव कर दो, स्टेप 3 यू कैन यूज इट। तो आई कैन टेल द क्लाइंट इन 3 इजी स्टेप्स भी फंक्शन क्या हो रहा है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है, राइट। एंड देन इट कम्स टू द इफेक्टिव बाइंग। अब मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं व्यूज पे दिखाना चाहूंगा, राइट, मैं उसको क्लिक्स पे नहीं दिखाऊंगा, राइट। सो इफेक्टिव बाइंग इज कि यहाँ पर मेरे लिए अगर जो वीडियो का कम्युनिकेशन है मैं उसको व्यूज पे बाई कर रहा हूँ, तो मेरा एक कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट हो गया है कि लोग उसको देखेंगे भी और कम्युनिकेट भी कर रहे हैं मेरे ऐड से। सो मेरा कैंपेन इट इक्वल्स टू द कैंपेन सक्सेस, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूँ लोग व्यूज दिखाना चाह रहा हूँ, लोग व्यूज देख रहे हैं, देन तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल हुआ ना। then that's how we define the success of a campaign. I call it campaign success formula कि effective communication होनी चाहिए, उस सही communication को सही तरीके से आप मीडिया बाई करोगे, then you'll be able to make a success to that campaign. So communication आपका effective है या नहीं है, so there are multiple ways to measure that. I'm coming on that point later. So हमारी ये लोग इसको जज कर सकते हैं कि उनको अगर इनको पता चल जाए सपोज कौन सा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, ये जो हम
अगर मान लो जीडी या कोई हमारा इससे कैंपेन चल रहा है, कैंपेन के लिए क्रिएटिव बनना है, तो अगर इनको ये पता चल जाए कि इसका बाइंग क्या है, किस पे हम इसको बाई कर, मतलब क्या बाइंग लगा रहे हैं इसको, और क्या पर्पस है इसका, अगर ये इन्फॉर्मेशन पता है और इन्हें पता रहे कि इफेक्टिव बाइंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या काम कर रही है, किस तरीके का मुझे क्रिएटिव बनाना है, या कैसी वीडियो कंपेयर करनी है, या क्या कम्युनिकेशन लाइन डालना है, अगर इतना इन्फॉर्मेशन उनको रहेगा तो ये लोग कर पाएंगे इजीली। इट्स अ वेरी फेयर एंड वैलिड पॉइंट कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको ये पता कैसे चलेगा। सो I'll cover that question in this particular। अब जैसे लेट्स से कि मैंने 2 क्रिएटिव चलाए हैं फेसबुक पे, ए और बी। I'm calling the creative A, I'm calling creative B just to give you the idea कि 2 क्रिएटिव अलग अलग चल रहे हैं। मैंने सेम क्रिएटिव को क्लिक्स पे चलाया, दोनों क्रिएटिव्स को, एंड देन आई लेट्स से मैंने हाइपोथेटिकल एक बजट ले रहा हूँ, मैंने उस पर 500 रुपये खर्च किया। क्रिएटिव ए पे मेरे को क्लिक्स आए हैं 5000, क्रिएटिव बी पे मेरे को क्लिक्स आए हैं 3000। दोनों अकॉर्डिंगली क्लिक्स के बेसिस पे देखूंगा तो मेरे एक पे ज्यादा एक पे कम है, बट मेरे पास जब क्लिक्स नहीं है तो मेरे को दोनों क्रिएटिव अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे पता नहीं है ना कौन सा ज्यादा बेटर है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ लोग किससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ रहे हैं। गॉट इट। तो उसके लिए व्हेन आई रन द कैंपेन, जब मेरे पास नंबर्स हैं, मुझे क्लिक्स दिख रहे हैं कि मेरे एक क्रिएटिव पे 10,000 क्लिक्स है, एक क्रिएटिव पे मेरे 5,000 क्लिक्स है, एक क्रिएटिव पे मेरा लेट्स से दूसरा मेरा मीडिया में एंगेजमेंट 5,000 लोगों ने एंगेज किया है, क्रिएटिव बी पे सिर्फ 3,000 लोगों ने किया है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जिस क्रिएटिव पे मुझे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, इट मीन्स पीपल आर सीइंग अ वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां पर मेरे लोग ज्यादा एंगेज हुए हैं, ज्यादा क्लिक्स आए। सो विद द हेल्प ऑफ दोज नंबर्स आई कैन इजीली चेक कि इस पर मेरे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो इसमें जो मेरा कम्युनिकेशन है, मेरा कंटेंट क्या फॉन्ट साइज यूज कर रखा है, मैंने कम्युनिकेशन क्या डाला था इन कंपैरिजन टू द क्रिएटिव बी। सो यू विल गेट एन फेयर अंडरस्टैंडिंग कि इस कम्युनिकेशन को लोग ज्यादा इफेक्टिव वे में कंज्यूम कर रहे हैं। अभी ऐसा होता है कि हमारे लाइक ज्यादा होते हैं, व्यूज कम होते हैं, या कुछ भी वाइस वर्सा, ऐसा कभी होता है? हाँ, तब आप कैसे जज करोगे? तो इट टोटली डिपेंड्स ना कि आपने उस पर कितना आपने बजट स्पेंड किया है। अब मैंने एक क्रिएटिव पे मैंने सिर्फ 10 रुपए ही स्पेंड किए हैं और वहां पे मेरे को 5 ही क्लिक आए, तो मुझे पता है ना कि मैंने इतना पैसा खर्च ही नहीं किया कि मैं इस पे कुछ लर्निंग्स ले पाऊँ। कंपैरिजन हमेशा चेक करना है तो उसके लिए हम लोग ए-बी टेस्टिंग करते हैं। ए-बी टेस्टिंग इसीलिए करते हैं कि टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि एक ही एक्शन पे 2 डिफरेंट क्रिएटिव्स को चलाएं, सेम रिजल्ट के लिए, सेम पर्पस पे के लिए हमने 2 डिफरेंट क्रिएटिव्स चलाए, 2 चलेंगे, सेम अमाउंट भी खर्च किया, सब कुछ सेम है, क्रिएटिव्स डिफरेंट है, या तो क्रिएटिव का लुक एंड फील डिफरेंट है, तो उसका कम्युनिकेशन, बैकग्राउंड कलर आपका डिफरेंट हो सकता है, फॉन्ट कलर चेंज हो सकता है, तुमको वो उसमें हमको पता चल जाता है कि कौन क्या उसमें अच्छा है। कुछ तो अच्छा होगा जिसकी वजह से लोग उसको ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो तुमको डिफरेंस समझ में आएगा। दैट मींस यू विल कम टू अ डिसीजन कि ये वाला क्रिएटिव ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब अगले जो क्रिएटिव्स बनाने हैं कोई भी बनाए इस जोन में बनाए, इसी तरीके का बनाए, डेफिनेटली सिमिलर लाइकवाइज माइंड वाले जो लोग हैं वो उसको पर क्लिक करेंगे, उस पर एंगेज करेंगे। ठीक है, तो फिर जिस पर परफॉर्मेंस नहीं आया उसको हटा दो, जिस पे आया उसको कंटिन्यू। सो बेसिकली ये किस चीज पे डिपेंड करता है? लाइक्स कुछ पे, भी हो सकता है। एंगेजमेंट पे, या तो reach पे? जो द ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट वी वर डिस्कसिंग ना, कि अगर जो मेरा केपीआई इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए क्लिक्स है, देन आई विल फोकस ऑन क्लिक्स। इफ आई एम रनिंग एन एड थ्रू वीडियो, मैं व्यूज पे काउंट करूंगा ना कि एक पे मेरे को 50,000 व्यूज आए, एक पे मेरे को 20,000 आए, तो जिस पे ज्यादा व्यूज आए इसका मतलब वो मेरा वीडियो ज्यादा एंगेजिंग है। आई गेट एन फेयर आइडिया, फिर देन आई कैन लुक एट द कंटेंट, कितना मैंने उसमें कंटेंट डाला, मुझे इजीली समझ में आ जाए कि ये लोगों को ज्यादा समझ आ रही है कहानी। दैट्स हाउ वी डिफाइन कि कितना सक्सेस हमारा जा रहा है। मतलब जो आप ए-बी टेस्टिंग करते हो वो तीनों चीजों पे डिपेंड नहीं करती, वो आप डिसाइड करते हो। वो हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो सोच के उसको बनाया गया है, मान लो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये था कि लाइक्स लाने हैं इसमें, और तुम लाइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्रिएटिव को बनाया, मुझे लाइक्स चाहिए, तो देखो लाइक्स आ रहे हैं अगर ठीक है, लाइक्स नहीं आ रहे बाकी और भी चीजें हो रही होंगी,
लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव उस पर आने के पीछे लाइक्स आ रहे हैं, तुम जस्ट फिर लाइक्स को लेके ही करोगे, उसी नंबर को चाहिए तुम्हारा। अगर ये था कि एंगेज करना है, तो भले लाइक्स कम आ रहे हैं लेकिन लोग एंगेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारा मैट्रिक्स एंगेजमेंट, वीडियो है तो व्यू हो गया। जिस ऑब्जेक्टिव से तुमने उस क्रिएटिव को वो बनाया चीज हम पहले ही सेट करके देते हैं। वो उसी के अंतर्गत तुम उसको देखो, वही तुम्हारा मैट्रिक्स है मेजर कर। और चलते कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं, उसे बंद करके वापस नहीं आ सकते। नया कैंपेन क्रिएट करते हो। अभी जब तुम कैंपेन लेवल पे कैंपेन सेटअप करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या चेंज कर, मतलब देयर आर लिमिटेड वेज यू कैन मेक चेंजेस इन द कैंपेन। आप हर चीज चेंज नहीं कर सकते। तो तेरे क्वेश्चन का आंसर ये, और दूसरे ऑब्जेक्टिव पे तू नया कैंपेन क्रिएट कर लेगा जो तेरे को उस पे नहीं चलाना। जैसे हमारा लाइक्स था ऑब्जेक्टिव, बट हमें एंगेजमेंट अच्छी मिल रही है, तो हम उस कैंपेन को एंगेजमेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, that's how you do it ना, उसी से तेरे को Same पता चल रहा है। campaign। हाँ, तो उसको और नया कैंपेन सेटअप मार दे। एक ही कैंपेन के दो KPIs हो सकते हैं। हाँ, सो केपीआई कुछ खुद से डिफाइन नहीं होते। केपीआई हमें डिफाइन करने होते हैं, या क्लाइंट हमें बताता है कि हमारे लिए ये बेस्ट मैट्रिक होगा मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस, जो भी हम प्रमोशन कर रहे हैं। अगर मैं वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मेरे लिए क्लिक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ अवेयरनेस क्रिएट हो, उसके लिए मैं रीच वाला कैंपेन चलाने वाला हूँ, या फिर मैं उसको व्यूज पे चलाऊंगा जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू मेजर द कैंपेन सक्सेस। आपने बोला कि वेबसाइट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन क्लिक्स होता है, और बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एग्जांपल्स? आप मेजरली जो आपके एड फॉर्मेट्स होते हैं ज्यादातर या तो बैनर्स होते हैं या वीडियोस होते हैं, या फिर तीसरा आपका टेक्स्ट एड्स आता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द एड्स मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो बाई करते हैं वो क्लिक्स पे ही बाई करते हैं। बट ऑन इन केस ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर लोग रीच पे भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड करता है मेरे लिए कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं। राइट, यहाँ पे मेरे लिए एंगेजमेंट भी डिपेंड करता है। व्हेन आई से एंगेजमेंट, it means someone is liking my post, someone is sharing my post, or maybe commenting on my post. That will be counted as an engagement. वो like कर रहा है, comment कर रहा है, share कर रहा है, वो मेरा engagement है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अगर जो ये है कि मेरे पोस्ट से लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मेरा एंगेजमेंट में काउंट होएगा। टोटली डिपेंड्स। एंगेजमेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑन योर सोशल मीडिया, बट ऑन वेबसाइट्स जनरली, ऑन अदर मीडियम जैसे आपका यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब पे मेजरली व्यूज पे फोकस करते हैं। ऑन वेबसाइट वी फोकस ऑन क्लिक्स, बट वी कैन ऑल्सो रन एनी कैंपेन फॉर व्यूज ऑन वेबसाइट्स और मे बी ऑन इम्प्रेशंस। तो टोटली डिपेंड्स, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है मेरे को क्या चाहिए। गॉट इट? जैसे इंस्टाग्राम पे हम सेव करते हैं कोई भी रील या पोस्ट, तो वो एंगेजमेंट में काउंट होता है। वो तो तेरा अर्न मीडिया हो गया ना, अभी बताया था ना। वो एंगेजमेंट में आता है ना। तूने लाइक कमेंट शेयर किया तो तेरा एंगेजमेंट होगा। सेव ऑप्शन सेव में नहीं आएगा, वो तो तू और अपना मीडिया में पर्सनल मेजर कर सकते हैं, अर्न सेव मीडिया जो में हम कर कर सकते, अर्न मीडिया में कर सकते हो। वो as a पता लग additional जाएगा benefit save वो होता है ना। किसने किया है। सो अर्न मीडिया कोई टूल नहीं है, हाँ, the बट इट्स अ कैटेगरी दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो अर्न मीडिया का पार्ट है, क्योंकि आपने वो सेव कर लिया। वो डेटा कल को आपको यूज में आ सकता है, आप किसी को शेयर करना चाहोगे। वो डेटा जो चला रहा है, मतलब जो ऑर्गेनिकली पोस्ट करे, जैसे मेरा अकाउंट है मुगल आजम, अगर कोई इसकी वीडियो सेव कर रहा है तो मुझे डेटा पता लग जाएगा कितने लोगों ने सेव किया। हाँ, वो पता लग जाता है कितने लोगों ने सेव किया। कहाँ था? इंस्टाग्राम के इनसाइट्स पे। हाँ, तो अब आ गया होगा, पहले नहीं था मेरी नजर में, मैंने अब अपडेट हो गया होगा। हाँ तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड कितने लोगों ने अपनी वीडियो सेव की है। सो पहले प्रीवियसली हमारे टाइम में ये हमें मैट्रिक नहीं दिखता था, बट अभी शायद रिसेंटली अपडेट आया होगा, बिकॉज एवरी डे अपडेट्स आर हैपनिंग ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। सो दैट्स व्हाई कि वी शुड बी अवेयर कि बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए। ये अपडेट के लिए हम रेगुलर अपने आप को देख सकते हैं, डेली अपडेट्स आके। ठीक है, सो अब कैंपेन आपने कर लिया, आपको मीडिया पता चल गया, आपने कैंपेन का सक्सेस भी मेजर कर लिया। नाउ देयर इज अ पॉइंट दैट कम्स कि आपको अपने कैंपेन को इम्प्रूव कैसे करना है, उसका कम्युनिकेशन कैसे और बढ़िया करना है। मैं जो चला रहा हूँ मेरे को दिख तो रहा है ए बी में से मेरा ए ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वो और ज्यादा अच्छा कैसे परफॉर्म करेगा ना, मैं एक लेवल पे जाके सोचूंगा ये चीज। राइट,
तो उसके लिए वी गेट सम इनसाइट्स एंड आइडियाज थ्रू सम केस स्टडीज, या फिर करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मेरे। अभी क्या होता है, जो भी कोई भी नया फेस्टिव आ रहा है, या कोई कोई नई चीज, कोई मूवी आ गई है, या कोई कोई मीम वायरल हो गया है, राइट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई है जो फनी है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई है जो बहुत ज्यादा वायरल है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट, सो हम इंटीग्रेट करते हैं अपने क्लाइंट का कम्युनिकेशन, राइट, वी डू दैट. So to sharpen our campaign communication, these are the mediums that we should look at कि मुझे case studies देखनी है. आप previous case studies देख सकते हो similar category में कि क्या क्या किसी particular brand ने क्या किया और उसको क्या result मिला. So you'll get some very very good insights. तो उससे तुम अपना communication और enhance कर सकते हो, improve कर सकते हो. This is the one basic thing you can follow. आप केस स्टडीज देखो. सेकंड, आप कम्युनिकेशन विद करंट ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, आप उसको अपने क्लाइंट के या ब्रांड के कंटेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो. जैसे बालों के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर जो बालों से रिलेटेड कोई ऐसी वायरल न्यूज आ रही है, ठीक है, तो आप उसको टैग शेयर के साथ कर सकते हो ना, बिकॉज आपका वो सिमिलर कैटेगरी है. तो करंट ट्रेंड्स में भी आप अपना कम्युनिकेशन को और शार्पन करने के लिए इंक्लूड करोगे. अब एंड देयर इज वन मोर थिंग, यू कैन डू द कीवर्ड रिसर्च कि मेरा स्ट्रेटनर पे कितनी रिसर्चेज आ रही हैं. लास्ट मंथ मेरी सिर्फ 5,000 सर्चेस थी, इस मंथ मेरी 10,000 सर्चेज हो गई हैं. इट मीन्स कि मेरा अगर जो मैं स्ट्रेटनर कहीं शो करना चाह रहा हूँ किसी क्रिएटिव में या किसी एड के टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि लोग वो चीज़ ज़्यादा सर्च कर रहे हैं. तो दीज आर द स्मॉल टैक्टिक्स दैट वी फॉलो टू शार्पन द कैंपेन कम्युनिकेशन कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर काम कर रही है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इन मीडिया स्पेसिफिकली. And there's one more thing, everyone is aware, competitor research. Competitor research से हमें पता चल जाता है कि अभी जो आपका एक्टिव क्लाइंट है, what that client is doing, that particular brand is doing, competitor is doing in the market. आप Facebook पे जाकर देखो किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हैं. आप सिर्फ स्टैटिक पोस्ट डाल रहे हो, आपने जाकर देखा आप वो सारा वीडियो डाल रहा है, उसकी वीडियो पे एंगेजमेंट भर के आ रहा है, and you'll get an insight कि यार हमें वीडियो भी डालना चाहिए. Got it? That comes into the competitor research wala part. So these are the basic things that you can follow to sharpen the communication of the campaign. So this is a basic एक हमारा campaign Elysian. We have a client है अपना एक Elysian automation. Basically what they do is they do home automation services. मेरा घर है, मैं अपने घर में एंटर कर रहा हूँ, एकदम खुद लाइट जल जाती है, मैं जाके सोफे पे बैठता हूँ, मेरा लैंप चल जाता है, मेरा एसी ऑन हो जाता है, राइट. तो एक ऑटोमेशन सर्विसेज दे प्रोवाइड. So we did a campaign for them. We run some campaigns on video, on creatives. हमने वो कैंपेन चलाया. उसके बाद हमने लीड, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे लीड लेकर आना. लोग फॉर्म फिल करते थे और हमें उनका डिटेल्स आ जाता था. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. तो हमने उसमें कैंपेन को अलग अलग मीडियम पे चलाया. उससे हमारा लर्निंग ये निकल कर आया कि हमारा वीडियो फॉर्मेट पे लोग ज्यादा एंगेज कर रहे हैं. सो लर्निंग ये है इस पर्टिकुलर कैंपेन से कि कोई ऐसा हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसमें हम उसको दिखा तो नहीं सकते, वी कैन टेल थ्रू अ वीडियो विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. तो पीपल अंडरस्टैंड मच बेटर थ्रू वीडियो फॉर्मेट. दैट इज आवर लर्निंग. कल को मैं एलिजन पे कोई नया कैंपेन करना चाहता हूँ तो मेरा सबसे पहला फोकस होगा कि यार वीडियो चलानी है मेरे को, क्योंकि वीडियो पे मुझे ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है, ज्यादा लोग एंगेज होते हैं, ज्यादा लोग मेरे से आगे कम्युनिकेट करते हैं. शेयर में आपने कैंपेन जो चलाया था उस पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहा है अभी तक? उस पे वीडियो ही आया है हमारा, वीडियो आता है. सो ऐसे जो आपके प्रोडक्ट बेस्ड आपके क्लाइंट है ना, जिनका लुक एंड फील पे ही आपका डिपेंड कर रहा है सेल, तो वहां पर वीडियो एसेट इज द मोस्ट पावरफुल एसेट इन टर्म्स ऑफ एड फॉर्मेट. ठीक है. मीडिया के टूल्स के बारे में बात करें, सो देयर आर मल्टीपल टूल्स व्हिच हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस. जो चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कितने क्लिक्स आए हैं, कितने यूजर्स आए हैं वेबसाइट पे, तो देयर आर मल्टीपल टूल्स दैट वी कैन लुक एट. गूगल एनालिटिक्स इज वन ऑफ देम. उसमें क्या होता है, वी कैन ट्रैक द बिहेवियर ऑफ द यूजर्स कमिंग ऑन द वेबसाइट. कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितना देर उन्होंने टाइम स्पेंड किया मेरा वेबसाइट पे, कौन कौन से पेज पर गए हैं, या फिर वो उनको कौन से पेज पे ज्यादा आ रहे हैं. तो आई कैन गेट एन फेयर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा कौन सा लैंडिंग पेज मेरा वेबसाइट पे अच्छा है, कौन सा नहीं है. सो वी कैन ट्रैक ऑल दीज यूजर बिहेवियर थ्रू गूगल एनालिटिक्स. सो मीडिया टूल्स दैट वी यूज दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा कैंपेन जो चल रहा है उससे जो लोग तो आ रहे हैं
पर वो कितने इफेक्टिव है, कितने वैल्यूएबल है, वी कैन ऑल्सो ट्रैक दैट मैट्रिक। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे कीवर्ड के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो कि ए बी और सी 3 कीवर्ड है, एक पे 5,000 है, एक पे 10,000 सर्चेज है मंथली, एक पे 20,000 है। आई कैन अंडरस्टैंड कि 20,000 जिस पे सर्चेज है वो मेरा कीवर्ड ज्यादा काम करेगा अगर जो मैं उस पर ऐड चला रहा हूँ। गूगल ट्रेंड्स, देयर इज अ टूल ऑफ गूगल ट्रेंड्स, आप उस पर ट्रेंड्स देख सकते हो क्या ट्रेंड चल रहा है। I'll show you कि मैं उसको लिंक एक बार खोल के दिखा दूंगा। दैट इज द फाइनल स्लाइड दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। इसमें क्या है, I have added the links of some helpful tools which will help you guys to understand कि मेरे को अगर जो किसी कैंपेन के लिए प्लान आउट करना है तो what matrices I should look at कि मेरे को क्या रिसर्च करना है। अभी जैसे मैं थिंक विद गूगल का भी एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। So guys, this is a platform with the name of Think with Google। ये गूगल का एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, वेरी हेल्पफुल टूल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग केस स्टडीज। आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर रीजन में, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या काम कर रहा है बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए। तो उसमें बेसिकली आपको ये भी बताते हैं कि उन्होंने क्या किया कैंपेन में, उन्होंने वीडियो को चलाया है, उन्होंने कैंपेन कैसे एग्जीक्यूट किया है, उनका कम्युनिकेशन राउट क्या उन्होंने लिया, उसके बाद उन्हें कितना रिजल्ट आया। यू विल गेट केस स्टडीज। So if you go ahead and see all these sections, you'll get the overview। जैसे कंज्यूमर इनसाइट्स में मैं जा रहा हूँ, मुझे कंज्यूमर के इनसाइट्स समझनी है कि कंज्यूमर क्या चीज सर्च कर रहे हैं। जैसे लेट्स टेक कोई टॉपिक बताओ, किसी को किसी टॉपिक पे केस स्टडी जानना हो तो कोई टॉपिक है किसी के माइंड में? जैसे अभी मान लो कि जैसे ई-कॉम पे सेल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्स पे देख लो अमान। सो आइडिया इज कि आप कोई भी कीवर्ड डालो, उससे रिलेटेड आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं या केस स्टडीज हैं, आपको सारा उस पे जो भी अवेलेबल डेटा है वो दिखाएगा। एंड यू कैन लुक एट दोज डेटा, एंड जो भी आपके लिए वैल्यूएबल है वो डेटा आप उसको यूज कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट एज वेल। जैसे गौतम, हेल्थ पे तो कोई ऐसा स्पेसिफिक तेरा दिखा नहीं रहा है, देख अलग अलग कैटेगरी आ रही है, केस स्टडीज तो आ रही है। like how the international rescue committee raised million for humanitarian aid, but ये हेल्थ कैटेगरी में आ गया, मे बी तो फिटनेस में आ जाएगा मेरा। हाँ फिटनेस में। अच्छा अमान, इस पे एक ये चीज बताओ कि मतलब जो इस पे ये केस स्टडीज होती है, सारा मटेरियल होता है, ये अपडेटेड होता है या मतलब कि काफी टाइम पहले का एक ही बार सबमिट होता है बस? ये भी स्पॉन्सर्ड ये अपडेट होता रहता है गौतम। जैसे अभी का ज्यादा पुराना होगा तब भी अपने काम का नहीं होगा अपना, तो ये है ना कि हमें लेटेस्ट चाहिए होता है, क्या चल रहा है अभी ये इस वाला टाइप जो की। ये जो मैंने अभी आर्टिकल खोला है ना गौतम, ये सितंबर 2022 का ये अपडेटेड है, तो ये हाँ लेटेस्ट। तो ठीक है, ठीक है। इसमें हम अपना स्टडी या ऐसी एडवर्टाइज कर सकते हैं इस पे। यार उसको थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि इस पे ऐसा कुछ अवेलेबल है, बट अभी आई एम नॉट श्योर कि ऐसे फंक्शंस इस पे अवेलेबल है या नहीं। बट गूगल खुद ही एक कंपाइल करता है स्टडी, इसके बाद जो कैंपेन्स होते हैं ऑल ओवर द रीजन वाइज कि एशिया में कौन कौन से पर्टिकुलर कैटेगरीज में क्या काम कर रहा है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड कर रहा है। यू विल गेट एन फेयर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं है कि हर चीज की आपको केस स्टडी मिल जाएगी, बट जो वहां पर अवेलेबल है गूगल खुद ही बना के खुद ही डाल। हाँ वो गूगल की टीम ही डालती है। तो उसमें बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके हेड होते हैं वो लोग, उस तरीके के लोग पूरा पूरा उनको डेटा बताते हैं, उनको इंसाइट्स देते हैं, देन दे कंपाइल अ केस स्टडी एंड दे अपलोड इट ऑन देयर चैनल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केस स्टडी तक आप लिंक्ड हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप जाके इसको जब आप जाके फ्री टाइम में इनको एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी देख गौतम, ये देख डेटा और मेजरमेंट का भी अपने पास सेक्शन है। देखिए हाउ टू बिल्ड मेजरमेंट प्लान फॉर 2023, ठीक है। सो आपको काफी सारे इनसाइट्स और काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। सो यू गाइस कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड, और यू कैन शेयर इट विद योर कलीग्स एज वेल। आपकी लर्निंग्स रुकेगी नहीं, लेटेस्ट चीजें आपको पता रहेगी।
सिमिलरली कुछ और भी टूल है, जैसे गूगल ट्रेंड्स है। गूगल ट्रेंड थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। अमान ये डेक शेयर कर देना यार। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, ये तो सब कुछ शेयर हो जाएगा। सो ट्रेंड, गूगल ट्रेंड्स आई थिंक ज्यादातर काफी लोगों ने यूज किया है। अवेयर, ठीक है। मैंने यूज किया है। हाँ, सो आप टॉपिक वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ सेक्शन ऑफ ट्रेंडिंग सर्चेस। मेरे पास कुछ नया नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या किस चीज पे नया कंटेंट बनाओ। कंटेंट टीम के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। क्रिएटिव टीम, कंटेंट टीम के लिए काफी हेल्पफुल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये दिखा रहा है कि मेरे को किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी सर्चेस चल रही हैं, एंड आई कैन सिलेक्ट दी कंट्री एज वेल। रियल टाइम सर्चेस क्या हो रही है अभी यहाँ पे, ये देखो। लोग ये पास्ट 24 आवर्स में आई कैन सी कि पाकिस्तान वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम, ये वाली न्यूज मेरी काफी ट्रेंड कर रही है। दीपिका पादुकोण काफी ज्यादा फेमस हो रही है। करवा चौथ हुआ है अभी, करवा चौथ की काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पोस्ट है, लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो इनसाइट्स यू कैन प्लान योर कैंपेन कंटेंट और योर कैंपेन एग्जीक्यूशन। काफी चीजें तुम प्लान आउट कर सकते हो। ये टूल्स तुम्हें हेल्प, these tools will help you in every way। तुम्हें कुछ इंसाइट चाहिए, तुम्हें कोई कुछ अपडेट चाहिए कि मार्केट में नया क्या चल रहा है, you'll get a fair understanding and it will give you the numbers। फिल्टर लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या ट्रेंड पे चल रहा है, जैसे हाँ, ये तो देखिए, एंटरटेनमेंट ये आ रहा है। हाँ ठीक। Business, अमान जैसे ये क्या दिखा रहा है तुम्हें? कोई आर्टिकल खुलेगा इस पे या क्या खुलेगा? एक बार ये क्लिक करियो भाई कोई भी। ये देख, जैसे ये डायबिटिक फूड वाला, अब ये दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्च से रिलेटेड कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ग्राफ एक पूरा मुझे समझ में आ रहा है। सो फ्री टाइम में जब तुम लोग इसको देखोगे ना, उसमें हर चीज का मैट्रिक का उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दे रखा है कि इसका मतलब क्या है, तो you'll get a fair understanding। So coming to the main point कि these tools will help us out to understand कि हम जो काम कर रहे हैं, एक तो बैठ के आप लोग अपना दिमाग लगा रहे हो। कोई भी एक्सेस कर सकता है। हाँ हाँ, कोई भी ये data फ्री टूल है। फ्री टूल है, आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो, आप इन पे जाके सीधा लॉगिन करो और आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो कुछ भी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उस पर्टिकुलर टूल। सो सिमिलरली काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारे टूल्स हैं। सो आई विल शेयर दैट लिंक, और इसमें मैं कुछ लिंक्स और ऐड करूंगा, जिससे कंटेंट टीम हो गई है या फिर अपनी अपनी डेटा डिपार्टमेंट टीम है, तो उनको इनसाइट्स चाहिए होती है, काफी चीजें चाहिए होती है, तो दे कैन यूज दीज टूल्स इजीली। आपको मैनुअल एफर्ट करने का जरूरत ही नहीं है डेटा निकालने की, या अपना माइंड लगाने का जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ रहे हो जा जाके। तो दीज टूल्स विल ईज योर जॉब कि मुझे इसे क्विकली कैसे करना है। ठीक है गाइस, सो that's all for today for the basics of media or effective tools ka session। Anybody have any question, query, you can ask।